My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another important session for concept revision for CAT 2025 on arithmetic. So start करते हैं session, and if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon and also like this session. And you can also join Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT. So start करते हैं एक और important session. So first question, two runners A and B, they start from the same point on a circular track of length 200 by root 2 meters. Then run in the same direction with the speeds 14 meter per second and 6 meter per second respectively. Wherever they meet, those points are marked by C on the track. They stop when they meet at the starting point, and these marked points form the vertices of a polygon. We have to find the area of that polygon. Simply conceptual question है. Pause the video and try to solve it. Okay. So first of all, they are running on a circular track जिसका लेंथ हमें गिवन है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज गिवन. तो पेरीमीटर हमारा है 200 पाई रूट 2 एंड पेरीमीटर ट्रैक ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर लेंथ इज 2 पाई आर. 2 पाई आर इज 200 पाई रूट 2. So pi and pi will get cancelled out. So r will be equal to 100 root 2 meters. So radius of the circular track will be 100 root 2 meters. Okay. Now just understand the concept of number of meeting points. Okay, यहाँ पे हमें क्या given है? We've been given speed of A and B. Speed of A is 14 meter per second and speed of B is 6 meters per second. And they are moving in the same direction. So value of speeds in their direction is important to find out number of distinct meeting points. Okay, so simple funda is that number of distinct meeting points depend on two cases. First case is when both runners are moving in the same direction. And second case when both are moving in the opposite direction. If runners are moving in the same direction and the ratio of their speeds is A is to B in the most simplified form, यानी कि HCF of A and B should be equal to 1. They cannot be further simplified. So if the ratio is A is to B of speeds of the two persons in the most simplified form and they are running in the same direction, the number of meeting points will be equal to difference of A and B. This will be difference of A and B. And if they are moving in the opposite direction, again, if the speeds are in the ratio A is to B in the most simplified form, yani ki HCF of A and B, that is equal to 1. So in that case, number of meeting points will be equal to A plus B. Let us take one simple example. So अगर हमने एक example लिया, let us say speed of A is 15 meter per second and speed of B is 9 meter per second. So ratio of speeds is 15 is to 9, which is 5 is to 3. अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 5:3 है. तो सेम डायरेक्शन में when they both are moving in the same direction, the number of meeting points will be 5 minus 3. So 2 meeting points. And in the opposite direction, number of meeting points will be 5 plus 3. So that is equal to 8 meeting points. Okay. So in the present question, हमें speed की values given है, that is 14 and 6. So ratio of speeds will be, speed are 14 and 6. So ratio of speeds will be 7 to 3. And since they both are moving in the same direction, the number of meeting points will be 7 minus 3. 4 distinct meeting points, MPs any meeting points. 4 distinct meeting points will be there, and all these meeting points will be equidistant. And these 4 points are including starting point. तो स्टार्टिंग पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड है. टोटल 4 मीटिंग पॉइंट्स आर देयर एंड सिंस दे आर इक्विडिस्टेंट, तो हमारा शेप क्या बनेगा यहाँ पे? दिस शेप विल बी अ rhombus as well as a square. If this is the starting point, let's say one point will be opposite of that and then 2 points here. All 4 points equidistant. So this will be the polygon, which will be a square.
and length of one side of the square. Since radius is, if this square is ABCD और PQRS, क्योंकि AB हमने पर्सन्स का नाम भी लिख दिया है तो PQRS मान लेते हैं इसको. फॉर दिस स्क्वायर PQRS, this is the starting point. So PR and SQ, these will be diameters. So PO, if the intersection point of diagonals, that is equal to O. O will be center of this circle. So PO will be radius, and radius is 100 root 2. So PO will be 100 root 2. OS will be 100 root 2. And since these angles are 90 degrees, all angles are 90 degrees, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्या है, PR is a diameter. अदरवाइज रॉम्बस तो देखो बनी रहा है बिकॉज ऑल साइड्स विल बी इक्वल. ठीक है, PR इज अ डायमीटर, SQ इज अ डायमीटर. तो if PR is a diameter, तो angle on one side will be angle made on the semicircle, so that will always be a right angle. This angle will be 90 degrees. Similarly, this angle will be 90, and hence these two by the same logic are also 90 degrees. So all four angles are 90 degrees and all four sides are equal. Hence हमारा clearly this will be a square. Okay, और साइड क्या आएगा हमारा, this is 100 root 2, this is 100 root 2, तो PS will be equal to 100 root 2 into root 2, which is equal to 200. So area of this square will be equal to side square, side का whole square, which is 200 whole squared, and hence 40,000 meter square. Our answer will be 40,000 meter square. क्या ये समझ पा रहे हो? क्लियर है? ठीक है, अब एक बार और चीज़ों को और क्लियरली देख लेते हैं. देखिए, हमें स्पीड का रेशियो तो देखो गिवन है, तो स्पीड हमारा 14:6 है, 14:6 है, तो रेशियो इज 7:3. If ratio of speeds is 7:3, तो we can say कि if A is traveling 7 meters in some time, तो B will be traveling 3 meters in the same time, क्योंकि स्पीड का रेशियो 7:3 है. और if A is traveling 7x distance, तो B will be traveling 3x distance. और if A is traveling 7 rounds in total in some time t, तो B will be traveling 3 rounds in total in that time t. अगर A 7 राउंड्स ट्रैवल कर रहा है तो B विल बी ट्रैवलिंग 3 राउंड्स इन द सेम टाइम. क्या ये बात क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. परफेक्टली क्लियर है. और जब सेम डायरेक्शन में दो पर्सन्स मूव करेंगे तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कब आएगा? फर्स्ट मीटिंग पॉइंट विल बी व्हेन द फास्टर रनर is traveling 1 round more than the slower runner. Isn't it so? First meeting point will be when the faster runner is running 1 round more than the slower runner. तो अगर slower runner का round is, slower runner is covered, let us say R rounds, so faster runner must have covered R plus 1 rounds. That will be our first meeting point. Second meeting point will be when the difference between the two is 2 rounds का difference है. ठीक है, यानी कि just double the time. तो 2 times R plus 1 यानी 2R plus 2 rounds by the faster runner, and slower runner would have covered 2R rounds. Now this will be second meeting point, and so on. Third meeting point will be 3 times the time taken in first meeting. Fourth meeting point will be 4 times the time taken in the first meeting. Isn't it so? तो अगर 7 rounds cover किए हैं A ने, coming back to our original question, B has covered 3 rounds in the same time. तो gap between these two कितना है gap? Gap है हमारा 4 rounds का. So A has covered 4 more rounds than B, यानी कि exactly at this moment when A has covered 7 rounds and B has covered 3 rounds, they are meeting again because complete number of rounds उन्होंने cover किए हैं. तो A after 7 rounds will be again at starting point, B after 3 rounds will be again at the starting point. They both are at the starting point and A has covered 4 more rounds, यानी कि this is their fourth meeting. ये उनका फोर्थ मीटिंग होगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर ये फोर्थ मीटिंग होगा तो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ होगा? फर्स्ट मीटिंग विल बी व्हेन A would have covered 7 by 4 rounds and B would have covered 3 by 4 rounds. हमने by 4 डिवाइड कर दिया, तो दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग. ठीक है, और क्लैरिटी से समझने के लिए काम कर रहे हैं कि इफ दिस वाज देयर स्टार्टिंग पॉइंट, लेट अस से, तो फर्स्ट मीटिंग कब होगा? जब A हैज कवर्ड 7 by 4 राउंड्स एंड B हैज कवर्ड 3 by 4 राउंड्स. तो B हैज कवर्ड 3 by 4 rounds. Let us say they are moving in this direction, they both are moving in this direction. So the first meeting will be at this point after 3 by 4 round. So this will be their first meeting point. Okay. Second meeting कब होगा? Divide this by 2 या फिर multiply by 2 कर दो इसको, 7R by 4 और 3R by 4 को. Second meeting कब होगा? जब ये 7 फर्स्ट
ए हमारा 7r/4 7/4 राउंड्स और ट्रेवल कर लेगा, बी 3/4 राउंड्स और ट्रेवल कर लेगा, यानी कि दैट विल बी 7/2 राउंड्स एंड 6/4 यानी 3/2 राउंड्स, या फिर कहते हैं 14/4 एंड 6/4। क्लियर है? तो 7/2 राउंड्स यानी कि एंड 3/2 राउंड्स। अब इनके बीच का गैप कितना है? 2 राउंड्स का है। दिस वॉज मीटिंग नंबर 1, दिस इज मीटिंग नंबर 2। तो मीटिंग नंबर 2 कहाँ पे होगा? 3/2 यानी कि एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट, दिस विल बी मीटिंग नंबर 2। नाउ मीटिंग नंबर 3 कहाँ पे होगा? मल्टीप्लाई बाई 3/4, मल्टीप्लाई बाई 3/4 नहीं, 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं 7:3 को, बट अदरवाइज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मीटिंग वाले पॉइंट को। ठीक है, तो 7 into 3 21/4 rounds and 9/4 rounds for second person for B. This will be their third meeting. 9/4 is basically 2 plus 1/4, यानी कि third meeting will be at this place, और fourth meeting तो हमारा starting point पे ही होगा। This was meeting number 4 when first has completed, A has completed 7 rounds and B has completed 3 rounds. This will be meeting number 4 at the starting point. तो क्या ये पार्ट क्लियर है? तुमने सारे के सारे राउंड्स को क्लियरली सारी बातों को समझ भी लिया। ठीक है, अब अपने एंड पे आई बिलीव कि तुम क्वेश्चन कोई भी आए मीटिंग पॉइंट से रिलेटेड तो डेफिनेटली उसको कर पाओगे। ओके, सो दैट फंडा इज रिवाइज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 alcohol water solutions A, B and C are prepared with different concentrations of alcohol. When A, B and C are mixed in the ratio 1:2:3, the resulting solution has a concentration of 80%. When A, B and C are mixed in the ratio 2:3:5, the resulting solution has a concentration of 81%. If the concentration of mixture is P%, when A, B and C are mixed in the ratio 3:2:5, so we have to find the value of P. यहाँ पे हमें A, B और C का concentration unknown है. We have no idea what their concentrations are. What we know is about two mixtures. First mixture, when A, B and C are mixed in the ratio 1:2:3, and the resulting concentration is 80%. Second mixture is when A, B and C are mixed in the ratio 2:3:5, and resulting concentration is 81%. And we need to find out if A, B and C are mixed in the ratio 3:2:5, so what will be the resulting concentration? So to start with, let us assume concentration of A is equal to small a percent, concentration of B is equal to B%, concentration of C is equal to C%. And in the first case, when they are mixed in the ratio 1:2:3, the average concentration comes out to be 80%. Okay, apply the formula of weighted average. तो A into 1, हम एवरेज किसका निकाल रहे हैं? परसेंटेज का एवरेज निकाल रहे हैं। तो A into 1 प्लस B into 2 प्लस C into 3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये बात इसलिए तुम्हें बताया सो दैट तुम डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर पे क्या लिखोगे? 1 + 2 + 3। एवरेज किसका निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं परसेंटेजेस का। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में परसेंटेज गलती से नहीं लिख देना, A + B + C मत कर देना। दैट इज भाई, ये बात दिमाग में हमेशा रखना है कि जिन वैल्यूज का एवरेज निकाल रहे हैं वो नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में वेट्स आएंगे, उनके रिस्पेक्टिव वेट्स क्या है? 1, 2 एंड 3। यानी कि A का हमने 1 यूनिट क्वांटिटी लिया है, B का 2 यूनिट क्वांटिटी लिया, C का 3 यूनिट क्वांटिटी लिया, तो 1 + 2 + 3 एंड दिस टोटल इज इक्वल टू 80। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन आ जाएगा हमारा 2A + 3B + 5C डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 5, this is equal to 81. So first equation from here is A plus 2B plus 3C, and that is equal to 80 into 6. So this is equal to 480. And second equation is 2A plus 3B plus 5C, and this is equal to 81 into 10, 800, 81 into 10, yes, 810. This is our first equation, this is our second equation. And somehow we have to mix these two equations and find out the third scenario. ठीक है, थर्ड सिनेरियो क्या रहा है हमारा? 3A plus 2B plus 5C, and this divided by 3 plus 2 plus 5, and this is equal to some concentration. Let's say क्या हो रहा है? Let us say that is equal to, क्या मान लें इसको? अभी मान लेते हैं इसको P ही मान लेते हैं, P ही मानना है हमको। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 10P, 3A plus 2B plus 5C, that is equal to 10P. Now in this case we have two equations. Equations हमारे पास दो हैं, but unknown 3 है, बहुत नाइंसाफी है। A, B and C, 3 unknowns are there, but there are only 2 equations, so we cannot find out individual values of A, B and C.
इन दिस केस हम इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी तो नहीं पता लगा पाएंगे, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट पॉसिबली, नॉट ऑलवेज बट पॉसिबली, द वैल्यू ऑफ 3a + 2b + 5c. So that can be possible, cannot be possible, depends on the values, the equations. ठीक है, तो पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस से वी कैन फाइंड आउट दैट. ठीक है, लेट अस से वी कैन फाइंड आउट दैट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को विल मल्टीप्लाइंग बाय सम नंबर, एट सेकंड इक्वेशन को विल मल्टीप्लाइंग बाय सम अदर नंबर, and then we'll be adding both these equations. Let us say first equation we are multiplying by x and second equation को we are multiplying by y. ओके और फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराएंगे. तो फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया x से, तो कोफिशिएंट ऑफ a विल बी x into a. सेकेंड इक्वेशन will be multiplied by y, तो कोफिशिएंट ऑफ a विल बी y into 2a, y into 2. ठीक है, x into 1 कोफिशिएंट ऑफ a इन द फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड में y into 2 कोफिशिएंट ऑफ a. और टोटल हमारा वैल्यू क्या आएगा? टोटल वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3. We are just comparing the coefficients of a. So x into a plus y into 2, सॉरी a क्यों बार बार कर रहा हूँ, x into 1. ठीक है, a का तो कोफिशिएंट ही देख रहे हैं, तो x into 1 plus y into 2 यानी कि x plus 2y, दिस इज इक्वल टू 3. कोफिशिएंट ऑफ a आ गया. सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ b, तो x into 2 यानी कि 2x plus y into 3, 3y, दिस इज इक्वल टू 2. ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ b. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ b और सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ c. कोफिशिएंट c आ जाएगा 3x plus 5y एंड दिस इज इक्वल टू 5. तो 3 इक्वेशंस हमें मिल गया. अब इनमें से सॉल्व 2 इक्वेशंस, बिकॉज 2 अननोन पे 3 इक्वेशंस है हमारी. सॉल्व 2 इक्वेशंस, एनी 2 इक्वेशंस, एंड देन यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट ऑफ x एंड y. और फिर थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है कि अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इफ दोज वैल्यूज ऑफ x एंड y आर सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन एज वेल, देन डेफिनेटली वील बी गेटिंग द आंसर. अदरवाइज द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, वील बी सॉल्विंग एनी 2 इक्वेशंस और वहां से जो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा, दोज x एंड y वैल्यू विल बी पुटिंग इन द थर्ड इक्वेशन. और अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, then we'll be getting a definite unique solution. And if that is not satisfying the third equation, यानी कि x and y का there is no solution, there is no solution, so the answer cannot be determined without a third equation. क्योंकि थर्ड इक्वेशन given तो नहीं है यहाँ पे, तो थर्ड इक्वेशन के बिना आंसर डिटरमाइन उस केस में नहीं कर पाएंगे. तो let us solve these two first two equations from a and b. इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर चेक कर लेंगे सी पे. तो x plus 2y is 3, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 2, तो दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2x plus 4y is equal to 6. एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 3y, दिस इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2x plus 3y 2 है, 2x plus 4y 6 है, तो y विल बी इक्वल टू 4. एंड y इक्वल टू 4 आ गया, तो 2x plus 16 is 6, तो 2x is equal to 6 minus 16 minus 10, x will be minus 5. x is equal to minus 5 एंड y is equal to 4 आ गया. ठीक है, x is equal to minus 5 और y is equal to 4 आ गया. अब लास्ट इक्वेशन में चेक करते हैं, तो x equal to minus 5 दिस विल minus 15, y is equal to 4 दिस विल plus 20, minus 15 plus 20 is equal to 5. तो yes, this is satisfying. तो definitely these values are correct and we'll be getting a solution. x equal to minus 5 and y is equal to 4 पे हमें definitely solution मिल रहा है. ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा? x is minus 5. अब बस कांस्टेंट टर्म चेक कर लो, तो 480 इंटू माइनस 5, 480 इंटू माइनस 5 दैट विल बी minus 2400 प्लस 4 into 810, that will be 3240 plus 3240. So 3240 minus 2400, this will be 840. So 10p is equal to 840. तो यहाँ से हमारा p will be equal to 84. Hence p comes out to be 84%. Our answer will be 84% in this case. क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अल्टीमेटली हम वी आर नॉट मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस. ठीक है, ये डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट केस में नेगेटिव कोफिशिएंट आया, x आया -5, y आया 4. तो x और y की जो वैल्यूज आई हैं, इवन इफ x इज नेगेटिव, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर मिक्सिंग a b एंड c. ठीक है, हम जो कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग a b एंड c, वी आर नॉट मिक्सिंग सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2, बिकॉज -5 में कैसे मिक्स करेंगे? ठीक है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट. वी आर मिक्सिंग a b एंड c और उससे हमें रिजल्ट में एक सॉल्यूशन मिल रहा है, उसका कंसंट्रेशन p है. उसके लिए हमने जुगाड़ फिट किया है. ठीक है, वी आइडेंटिफाइड दैट वैल्यू ऑफ p यूजिंग दीज टू इक्वेशंस. वी आर नॉट मिक्सिंग दीज टू solutions as such. ठीक है, we are mixing the original 3 solutions A, B and C only. Okay, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, so this is how you should be doing such a question. Okay, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Every day train X leaves Kanpur for Delhi and at the same time train Y leaves New Delhi for Kanpur. The two non-stop trains run at a constant speed and always cross each other at station M. On Monday, train X started 40 minutes late. As a result, it crossed train Y at a distance of 36 km from station M. On Tuesday, train Y started 30 minutes late. As a result, it crossed train X 18 minutes later than usual. To find the speed of train Y in kilometer per hour. Beautiful question. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ट्रैप में नहीं फंसना है, तो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, सिचुएशन को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है. There are two trains, train X and train Y. Train X is going from Kanpur to Delhi and train Y is coming from New Delhi to Kanpur, and both are starting at the same time. Okay. Let us say this is Kanpur. This is New Delhi. Train X is starting from Kanpur. Train Y is starting from New Delhi. Speeds हमें पता किसी की भी नहीं है, ना X की पता है ना Y की पता है. The two non-stop trains run at the constant speed and always cross each other at some station M. Let us say this is station M, somewhere in the middle, because speeds can be different. So this is station M where they meet usually. When the both trains start at the same time, तब they are meeting at point M. But Monday को क्या हुआ? On Monday, train X started 40 minutes late. And as a result, it crossed train Y at a distance of 36 kilometers from station M. तो कौन सी ट्रेन लेट स्टार्ट हुई है? ट्रेन X has started on Monday 40 minutes late. तो ट्रेन Y तो अपने टाइम पे स्टार्ट किया होगा, ठीक है. सो इफ ट्रेन Y हैज स्टार्टेड ऑन इट्स टाइम एंड लेट अस से दे ऑलवेज मेट एट पॉइंट M एट सम टाइम, मान लेते हैं वो टाइम था 12 PM पे. तो एट 12 PM द बोथ ट्रेन्स सिर्फ ये तुम्हारे समझने के लिए माना है, एज्यूम किया है टाइम, ठीक है. तो एट 12 PM बोथ द ट्रेन्स मीट एट स्टेशन M. सो आज क्या हुआ होगा? ऑन मंडे क्या हुआ होगा? ऑन मंडे ट्रेन Y would have started at the right time. Train X is 40 minutes late, but train Y is starting at the right time. तो at 12 PM train Y कहाँ पे होगा? Train Y would have reached station M at exactly 12. Isn't it so? But since train X is late, so train X will be short of this distance. Train X will be somewhere on the left hand side. Let us say train X is at this position. ठीक है. सो ट्रेवल टाइम आज ट्रेन X का क्या है? ट्रेन Y, इफ ट्रेन Y हैज ट्रेवल्ड फॉर T minutes, so train X has traveled for T minus 40 minutes because train X is 40 minutes late today. Isn't it so? So if train X has traveled T minus 40 minutes, अगर T minutes से travel किया होता तो train X would have reached station M, but that is not today. So today this distance that usually is traveled by train X in 40 minutes, this distance will be traveled by train X as well as train Y. Isn't it so? कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, we cannot know, but this distance will be traveled by train X and train Y. And what we know that the trains meet at a distance of 36 kilometers from station M. That will be somewhere in the middle. Okay, let us say this is distance traveled by train X and this is distance traveled by train Y. So since distance is 36 kilometers from station M, तो जो 36 किलोमीटर डिस्टेंस है किसने ट्रैवल किया है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन Y, बिकॉज M से 36 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे मिला है. तो दिस इज 36 किलोमीटर्स, दिस डिस्टेंस हियर, दिस इज 36 किलोमीटर्स एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन Y आफ्टर 12 PM. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ट्रेन X का डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया, वी विल गेट दैट आइडिया, बट अभी फिलहाल हमें नहीं पता. Okay, so this is our first information that we have used and understood. Now let us come to Tuesday. Tuesday is a different day. So different train is late. On Tuesday, train Y is starting 30 minutes late. So train X is on its right time. So Tuesday को क्या होगा? Train X will be starting at right time. And at 12 PM, it will be reaching station M waiting for train Y. But train Y आई ही नहीं. Train Y late है. So train Y is 30 minutes late. It will be somewhere behind. Let us say at this position. So travel time by train X will be T minutes today. Travel time by train Y will be T minus 30 till now, till this point. ठीक है, at 12 PM.
after 12 p.m., the remaining distance will be covered by train X and train Y. Isn't it so? And this distance here, this total distance is usually covered by train Y. So train Y covers this distance in 30 minutes. 30 minutes by train Y. Isn't it so? But it is saying, the question is saying, as a result, it crossed train X, train Y crossed train X 18 minutes later than usual. 18 minutes later than usual. The time taken by train Y and train X before meeting is 18 minutes. Isn't it so? So this 18 minutes distance has been traveled by train X, and this 18 minutes distance has been traveled by train Y. But the total distance, this total distance is traveled by train Y in 30 minutes. So only focus on this stretch. So this total stretch is traveled by train Y in 30 minutes. ठीक है, आउट ऑफ इट 18 मिनट्स का डिस्टेंस तो ऑलरेडी ट्रैवल किया है, 18 मिनट्स का डिस्टेंस तो ट्रेन वाई ने ट्रैवल किया है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है दैट हैज बीन ट्रैवल्ड बाय ट्रेन एक्स इन 18 मिनट्स. ये डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है अगर ट्रेन वाई ने, तो कितना टाइम लगता? ट्रेन वाई टेक्स टोटल 30 मिनट्स का टाइम इन ट्रैवलिंग दिस स्ट्रेच. ठीक है, टोटल 30 मिनट्स का टाइम. एंड दिस स्ट्रेच दैट ट्रेन वाई ट्रैवल टुडे एज वेल, दैट इट ट्रैवल्ड इन 18 मिनट्स. देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय ट्रेन वाई इन 12 मिनट्स. ठीक है, इन 12 मिनट्स. तो दिस डिस्टेंस, ओनली दिस डिस्टेंस, ठीक है, फोकस ऑन दिस डिस्टेंस ओनली. तो दिस डिस्टेंस ट्रेन एक्स इज ट्रैवलिंग इन 18 मिनट्स. गड़बड़ हो रहा है, अच्छे से लिखना है प्यारे तरीके से. सो लाइटर को हटाना है ना. ठीक है, सो ट्रेन एक्स इज ट्रैवलिंग इन 18 मिनट्स, जबकि ट्रेन वाई वुड हैव ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट्स. तो टाइम टेकन का रेशियो कितना आ रहा है फॉर ट्रेन एक्स एंड ट्रेन वाई फॉर द सेम स्ट्रेच? 18:12. तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 12:18 और 2:3. यहां से हमें एक्स और वाई का स्पीड का रेशियो मिल गया. दैट स्पीड का रेशियो इज 2:3. क्या ये क्लियर है? इफ स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 2s, तो स्पीड ऑफ ट्रेन वाई विल बी 3s. दिस मच इज नोन नाउ. Now focus on this stretch. In this stretch, this distance is traveled by train X in 40 minutes. Isn't it so? But this distance has been traveled by train X as well as train Y. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन X एज वेल एज ट्रेन Y ने. तो सिंस ट्रेन X का स्पीड, टाइम तो सेम ही है दोनों ट्रेन का, तो ट्रेन X का स्पीड 2s है, ट्रेन Y का स्पीड 3s है. एंड से बोथ ट्रेन्स हैव टेकन टाइम t1. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन X विल बी 2s टाइम्स t1 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन Y विल बी 3s टाइम्स t1. यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 2:3 होगा. अगर स्पीड का रेशियो है 2:3, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा? 2:3 होगा. यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी 2 यूनिट्स एंड दिस डिस्टेंस विल बी 3 यूनिट्स. और 3 यूनिट्स की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 36 किलोमीटर्स. तो 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 12 24 किलोमीटर्स. 24 kilometers. Okay, so this total distance comes out to be 24 plus 36, यानी कि this distance is 60 kilometers, and this 60 kilometer distance is traveled by train X in 40 minutes. ये distance train X cover करता है 40 minutes में. तो train X के लिए in 40 minutes it covers 60 kilometers. Speed of train X comes out to be equal to 40 minutes यानी कि 2/3 hours. तो 60 into 3/2 90 km per hour. 90 km per hour is the speed of train X, and that is equal to 2s. यहाँ से s की वैल्यू मिल गया, s is equal to 45. तो स्पीड ऑफ ट्रेन y will be 3 times 45 3s, which is 3 into 45, which is 135 km per hour. km per hour. क्या ये क्लियर है? दिस विल बी आवर आंसर. ओके, और कहीं पे भी तुमने कुछ एजम्पशन लिया होगा अपने एंड पे, तो गड़बड़ी क्या होगा कि डिस्टेंस तुम्हारा 54 आ गया हो या 72 आ गया हो या 120 आ गया हो. क्या गलतियां हो सकती हैं यहाँ पे? एक गलती ये हो सकता है कि तुमने एज्यूम कर लिया हो ये कि इफ ट्रेन एक्स इज 40 मिनट्स लेट, तो दे विल बी मीटिंग 40 मिनट्स लेट. नो, दैट इज अ रॉन्ग एजम्पशन. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज दैट डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाई रिमेनिंग डिस्टेंस. जो हमारा बचा, जो अभी हमने देखा, दिस डिस्टेंस, दिस इज कवर्ड बाई ट्रेन एक्स इन 40 मिनट्स. बट व्हेन बोथ ट्रेन्स आर ट्रैवलिंग द सेम स्ट्रेच, तो टाइम टेकन विल बी मच लेसर.
दे विल बी मीटिंग इन मच लेसर टाइम, isn't it so? एक्चुअल टाइम क्या होगा? एक्चुअल टाइम आप निकाल भी सकते हैं, बिकॉज 24 किलोमीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाई ट्रेन एक्स, तो टाइम टेकन कितना होगा? 24/90, ठीक है, 24/90 होगा, यानी कि 16 मिनट्स का टाइम लगा होगा। क्या ये क्लियर है कि दे मस्ट हैव मेट एट 12:16 PM? अगर 12 PM पे डेली मिलते होंगे तो 12:16 PM पे दे विल मीटिंग। क्या ये क्लियर? तो अगर रॉन्ग अजम्पशन लोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा यहाँ पे। तो अजम्पशन ये नहीं लेना है कि दे विल मीटिंग 40 मिनट्स लेट, वी हैव नो आइडिया कि एट व्हाट टाइम दे विल मीटिंग, बट वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन विल बी एनालाइजिंग दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन विल बी मूविंग टू सेकंड इन्फॉर्मेशन, जो हमें जहाँ पे टाइम गिवन है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमें गिवन है डिस्टेंस, वहाँ से हमें कुछ आइडिया लगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन में गिवन गिवन टाइम, वहाँ से हमें स्पीड का रेशियो का आइडिया लगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बट यस दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। तो एग्जाम कंडीशन में तुम्हें अवॉइड करना है, बात करके रखना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का स्कोप है और टाइम भी लगेगा, इस क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो समझ लिया होगा, बट एग्जाम में कीप दिस क्वेश्चन फॉर लेटेस्ट स्टेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next one. N workers can complete a project in M days. If one worker is increased, the work is completed in 4 days less. अब देखो तुम्हारे लिए इतनी एफर्ट करता हूँ, मेक श्योर टू लाइक दिस सेशन एंड ऑल्सो share about this session with others as well. ठीक है, so n workers can complete a project in m days. If one worker is increased, the work is completed in 4 days less. If one worker is decreased, then 6 more days are needed to complete the same work. तो अगर वन वर्कर इंक्रीज करते हैं तो वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 लेस डेज. इफ वन वर्कर इज डिक्रीज, देन वर्क इज कंप्लीटेड ऑब्वियसली इन मोर डेज, मोर नंबर ऑफ डेज, क्योंकि वर्कर्स डिक्रीज हो गए, तो 6 more days आर नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कंप्लीट द वर्क. So, however, on day 1, only one worker started the work. He is joined by another worker on day 2. Each subsequent day, one more worker joins until all n workers join the work. Another day onwards, all n workers continue working until the project is finished in t days. So, we have to find value of n. What will be value of n in this case? ठीक है, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. हमें गिवन क्या है? पहले हमें गिवन है कि n workers can project the work in m days. If n plus 1 workers are there, then project can be completed in 4 days less, यानी कि m minus 4 days में. If n minus 1 workers are there, then project can be completed in m plus 6 days. तो 3 informations are there. Number of workers, which will be basically proportional to efficiency, isn't it so? So number of workers कितने हैं हमारे? First case में n, in second case n plus 1, in third case n minus 1. या मोर अप्रोप्रिएटली लिख लें, क्योंकि वर्कर्स हमारे क्या है, क्लियरली एपी बन रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स या एफिशिएंसी का. सो इफ दे आर n minus 1 और n plus 1, accordingly time taken, if there are n minus 1 workers, so n workers के लिए time taken is m. For n minus 1 this is 6 days more, so this will be m plus 6, and for n plus 1 workers this will be 4 days less, m minus 4. Okay, so these values, number of workers, efficiency, is an arithmetic progression. और वर्क हमारा क्या है? वर्क इज बेसिकली एफिशिएंसी इनटू टाइम. वर्क इज कांस्टेंट, तो इफ वर्क इज कांस्टेंट और एफिशिएंसी इज एन एपी, तो टाइम विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. वैल्यू ऑफ टाइम विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सेम एज जब टाइम स्पीड डिस्टेंस में करते हैं कि इफ टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस हमारा सेम है, कांस्टेंट है, इफ टाइम इज एन एपी तो स्पीड विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इफ स्पीड इज एन एपी तो टाइम विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स इज एन एपी, तो नंबर वैल्यूज ऑफ टाइम, these values will be in harmonic progression, और हमने इसीलिए करेक्ट ऑर्डर में लिखा है n minus 1 and n plus 1. so m value, this value will be harmonic mean of m plus 6 and m minus 4. If there are three values a, b and c and b is their harmonic mean, तो value of harmonic mean is equal to b is equal to 2ac upon a plus c. ठीक है, या फिर a, b and c, if these are in harmonic progression, we can say that 1 by a, 1 by b and 1 by c, these are in arithmetic progression. और अगर arithmetic progression में तो middle term twice the middle term, यानी 2 times 1 by b, this is equal to 1 by a plus 1 by c. जरा सा ही फॉर्मूला भूलो तो बस इसको अप्लाई कर दो, यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, क्योंकि एपी तो नहीं भूलोगे, वही भूल जाओगे तो फिर तो खुद को ही भूल जाना. ठीक है, सो हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज 2ac अपॉन a plus c. तो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू थर्ड वैल्यू, तो 2 टाइम्स ऑफ m plus 6 इनटू m minus 4 डिवाइडेड बाई a plus c, यानी m plus 6 प्लस m minus 4. दिस इज हार्मोनिक मीन एंड दैट इज इक्वल टू m, बिकॉज m ही तो वैल्यू है हमारा. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू m. आप सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो. तो 2 टाइम्स ऑफ दिस m plus 6 plus m plus 4, यानी दिस विल बी 2m plus 2. तो m into 2m plus 2, this is equal to 2 times of m square minus 4m plus 6m, यानी plus 2m minus 24. तो लेफ्ट हैंड साइड इज 2m square
plus 2m, right hand side is 2m square plus 4m minus 48. So 2m square gets cancelled out. So 2m is equal to 48. यहाँ से m comes out to be equal to 24. m is equal to 24 और m equal to 24 आ गया तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी. m 24 आ गया तो n की वैल्यू मिल जाएगी. फिर अब किन्हीं भी दो केसेस को सिलेक्ट कर लो. जैसे वी सिलेक्टेड फर्स्ट टू केसेस. m is equal to 24 है तो फर्स्ट केस में क्या आएगा m plus 6 and 24 plus 6 into n minus 1, 30 into n minus 1. This will be equal to m into n, 24n. So 30n minus 30 is equal to 24n. So 6n will be 30. So n will be equal to 5. m is equal to 24 and n is equal to 5. हमें वैल्यू मिल गया और m और n का वैल्यू मिल गया तो वर्क का ही वैल्यू मिल गया क्योंकि वर्क इज इक्वल टू n into m ओनली. वर्क इज इक्वल टू n into m यानी कि 5 into 24 and hence equal to 120 units. Equal to 120 units. बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होगा. क्वेश्चन इसके आगे है भी है कि इफ इंस्टेड इन एक्चुअल सिनेरियो ऑन डे 1 ओनली 1 वर्कर इज देयर. ठीक है, वर्क हमें पता चल गया, वर्क इज 120 एंड n इज इक्वल टू 5. तो डे 1 पे देयर इज ओनली 1 वर्कर. डे 2 पे देयर आर 2 वर्कर्स. डे 3 पे देयर आर 3 वर्कर्स. डे 4 पे देयर आर 4 वर्कर्स. डे 5 पे देयर आर 5 वर्कर्स. और सिंस टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 5 ही है तो डे 5 के बाद में क्या होगा, अनदर डे के बाद में एवरी डे देयर आर n वर्कर्स. तो आफ्टर डे 5 एवरी डे देयर आर 5 वर्कर्स. विद दैट इज डे 6, डे 7 एंड सो ऑन देयर आर टोटल 5 वर्कर्स. ठीक है, लेट अस से डे x तक वर्क चलता है. डे x को भी 5 वर्कर्स होंगे. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज आफ्टर डे 5 लेट अस से दैट इज इक्वल टू d. तो फर्स्ट 5 डेज में नंबर ऑफ वर्क कितना होगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल वर्क इज 15 यूनिट्स plus 5 units every day. So if there are d more days, so 15 plus 5d, this is equal to 120. So 5d is equal to 105. So d comes out to be 21 days. बट हमारा आंसर 21 नहीं होगा क्योंकि आंसर क्या है कि टोटल टाइम कितना लगा है. टोटल टाइम इज t days, फर्स्ट 5 days and then d more days. तो 5 plus d will be our answer. t is equal to d plus 5 यानी कि 26 days टोटल वर्क हुआ है. 26 डेज हमारा टोटल वर्क हुआ है. क्या ही क्लियर है? ठीक है, so that is how we can solve this question. क्या ही क्लियर है? एंड इफ़ यू वॉच्ड माई सेशंस ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो एक फॉर्मूला टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने और डिस्कस किया था जहाँ पे कि APHP वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो, इफ़ यू कैन रिकॉल. तो उस फॉर्मूले को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट, फिर सेशन को रैप अप करते हैं. दैट फॉर्मूला वॉज कि टाइम इनटू स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. एंड इफ इन सब क्वेश्चन लेट अस से वी बीन गिवन दैट देयर आर 3 वैल्यूज, लेट अस से वन टाइम इज t प्लस डेल्टा t1. ठीक है, वन टाइम इज t माइनस डेल्टा t1 एंड अदर टाइम इज t या t माइनस डेल्टा t2 रख लो इसको. ठीक है, एंड t, दीज आर 3 वैल्यूज ऑफ टाइम एंड देयर आर स्पीड्स s1, s2 एंड s3. ठीक है, नाउ टाइम वैल्यूज यहाँ पे AP में नहीं है बट डिफरेंस हमें गिवन है टाइम का. ठीक है, t प्लस डेल्टा t1, t एंड t माइनस डेल्टा t2 और स्पीड वैल्यूज आर s1, s2 एंड s3 और हमारा डिस्टेंस फिक्स्ड है. डिस्टेंस सेम है तीनों केसेस में. इफ डिस्टेंस इज सेम वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू t1 इंटू t2. यहाँ पे t1 t2 ये जो t1 है ये नहीं है एक्चुअल टाइम वैल्यूज. ठीक है, तो अगर हमारा पहला टाइम वैल्यू लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट टाइम वैल्यू, लेट अस से दिस इज कैपिटल T1, दिस इज कैपिटल T2 एंड दिस इज कैपिटल T3. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड. ठीक है, डायमेंशन का हमेशा ध्यान रखना है. तो टाइम में विल बी राइटिंग t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस बिटवीन t1 एंड t2 या डेल्टा t. ठीक है, डेल्टा t, यहाँ पे डेल्टा t बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन t1 एंड t2. तो t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ t1 एंड t2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा s यानी कि डिफरेंस ऑफ स्पीड्स विच विल बी डिफरेंस ऑफ s1 एंड s2. ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी डिस्टेंस हमारा ऑल्सो बी इक्वल टू, अगर हम सेकंड और थर्ड वाला केस लें तो t2 इंटू t3 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ t2 एंड t3 मल्टीप्लाइड बाई s2 और s3 का डिफरेंस. ठीक है, इन शॉर्ट द फॉर्मूला इज
distance is equal to T1 T2 divided by delta T multiplied by delta S. And this is also equal to, यही सेम चीज अगर S1 S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा T ऐसे भी कर सकते हो. विद दिस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, अपने इन पे एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेना तो ये और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जहाँ पे कि हमें क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें. इन द फर्स्ट केस इफ देर आर n-1 वर्कर्स n+1 वर्कर्स, एफिशिएंसी की वैल्यूज हमें गिवन है n-1 एंड n+1. और टाइम क्या है हमारा? टाइम इन द फर्स्ट केस इज m+6, देन टाइम इज m एंड देन टाइम इज m-4. ओके, तो सेम फंडा है यहाँ पे, एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू वर्क. तो जैसे हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में किया वही सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं. वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इंटू एफिशिएंसी इंटू डेल्टा ई, एफिशिएंसी का डिफरेंस इन दो केसेस इंटू डेल्टा ई. ओके, या फिर दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू E1 इंटू E2 अपॉन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी. ओके, फर्स्ट टू केसेस लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा टाइम का वैल्यूज क्या आ रहा है? m+6 एंड m. तो वर्क कैन बी इक्वल टू m+6 इंटू m T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ दीज टू टाइम्स. डिफरेंस आ रहा है 6 का, डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू 1. दिस इज आवर वर्क. m+6 इंटू m बाई 6 इंटू 1, दिस इज आवर वर्क. अब सिमिलरली इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सिनारियो. तो m-4 इंटू m डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ m-4 एंड m दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ n एंड n+1 दैट इज इक्वल टू 1. अब m से m कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, और 4 से यहाँ बचा 2, 6 से यहाँ बचा 3. तो 2 इंटू m+6 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू m-4. 2m प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 3m-12. तो हेंस m इज इक्वल टू 24. यहाँ से वैल्यू आ गया. अब वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, या अदरवाइज हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं वैल्यूज. क्या ही क्लियर है? क्या ही अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्मूला. अदरवाइज बाकी मेथड हमने AP HP वाला तो सीख लिया है, इससे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे हमारा AP HP बन रहा है. अगर नहीं बन रहा होता तो फिर हमें इस मेथड को यूज़ करना पड़ता. अगर AP क्लियरली नहीं बन रहा होता, हमारा टाइम में भी AP नहीं बन रहा होता, तब फिर हमें इस मेथड को इस्तेमाल करना ही पड़ता. क्या ही अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? अदरवाइज क्वेश्चन और थोड़ा सा लिंगर ऑन करता और थोड़ा सा टाइम लेता. तो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस समझ में आएंगे, और ये जो फंडे हमने रिवाइज किया आज के इंपॉर्टेंट फंडे, ये भी तुम्हें क्लियर हुए होंगे. एंड मेक श्योर टू गिव your feedback in the comment section, and also like this session if you not already like it. And that is all for this session. Bye bye, take care, keep learning and keep watching.